दैट इज मैटर अराउंड अस वर्ल्ड ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਕਸਚਰਸ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਥਡਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ वीडियो के ऊपर लिंक से क्लिक करके देख लो, उस वीडियोस पे पहुंच जाओगे। तो अगर देख लिया तो वेल एंड गुड, यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। सो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब टू माय चैनल by clicking the red button below and also press that bell icon so that whenever I upload a new video you get all the notifications and you never miss on your studies. Okay, so today I am going to try to finish all the topics that are left in this chapter so that we can move to the next chapter soon. Okay, so I have already uploaded 7 videos and I think it's going a bit lengthy and ये तो पहले कि और ज़्यादा lengthy हो जाए है ना। I'll try to keep it cut short है ना। relevant information ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਏਗੀ but still I am trying कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ information ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ lectures ਜਿਹੜੇ ਆ फटाफट finish ਹੋਣ, ਆਪਾਂ next chapters ਵੱਲ move ਕਰੀਏ। ठीक, so let's start with the lecture. So today we are going to study about the fourth method है ना। पहला 3 methods बच्चे आप कर चुके हैं, किहड़े methods कर चुके हैं। पहला तो आप किया evaporation, दूसरा आप किया centrifugation, तीसरा आप कर लिया separating funnel है ना। 3 methods आप कर लिया, नहीं देखे हैगे तो तुसी मेरे चैनल ते चैनल ते जाके लभ सकते या फिर यूट्यूब ते टाइप करो evaporation method by learn with Halim Kaur, so you will reach through those videos। तुहानू वीडियोस आसानी नाल मिल जाऊगी, तुसी देख सकते हो। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोर्थ मेथड। ठीक है, सो द फोर्थ मेथड इज सब्लिमेशन मेथड। ठीक, ਹੁਣ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਆਊਟ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਦ ਲਿੰਕ ਹੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈ ਕੀ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੀਅਰ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਸੋਲਿਡਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ। अदरवाइज इदा होंगे ना जिदा पानी आ, अगर वो आइस आ तो पहला वो वाटर च कन्वर्ट होंगी, आफ्टर दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स गैशियस फेज है ना। लेकिन कुछ सबस्टांसिस इदा दे होंगे वो लिक्विड बनते नहीं है, सीधे कितने जंप कर जाते टू देयर गैशियस फेज दे जंप्स है ना। तो इस प्रोसैस में आप की कहते हैं सब्लीमेशन मैथड। ओके, तो सॉरी सब्लीमेशन प्रोसैस कहते हैं। हुण सब्लीमेशन मैथड जिहड़ा है ना, ये आप कित्थे यूज़ करते हैं ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਬਲੀਮੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੌਰੀ ਸਬਲਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਬਲਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, एग्जाम्पल्स है बच्चे ਜਿਹੜੇ सबसटेंसिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਲਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ सबसटेंसिस ਆ। ਨੈਪਥਲੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਨਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਂਫਰ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैगियां आ उन्हां सबसटेंसिस ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। तो ये रिलेटेड जी आप एक्टिविटी करनी है ना, वो भी यही है, इन्हें समझेंगे। तो ये बड़ा सिंपल जो यही यूज़ आ कि अगर कोई सबसटेंस जोड़ा है डायरैक्टली गैशियस फॉर्म के कन्वर्ट हो सकता है तो उन्होंने आप इस मैथड के नाल की कर सकते, सैपरेट कर सकते हैं। सो वी विल क्विकली डू द एक्टिविटी फॉर द सब्लीमेशन मैथड। हेडिंग भी मैं इरेज कर दूँगी है ना, अपने की लोड़ नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग पा लो एक्टिविटी का। एक्टिविटी की करना है आप अपने को कॉमन सॉल्ट और अमोनीयम क्लोराइड का एक मिक्सचर है। कॉमन सॉल्ट की बच्चे सोडियम क्लोराइड जोड़ा कि आप किचन के यूज़ करते हैं ना, नमक है ना वो। ओके, तो एक्टिविटी की आ टू सेपरेट एक मिक्सचर ऑफ कादा मिक्सचर सेपरेट करना है। अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड एंड common salt and common salt। ओके, एक्टिविटी हो गई ये। तो मटीरियल्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਨਲ। ਫਨਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ है ना, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यूज़ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। एक अपन फनल चाहिए, एक अपन चाइना डिश चाहिए वाइट से कलर की ना, एक छोटा जो बाउल होंगे तुम लैबोरेटरी देखा होगा। सो वी नीड अ चाइना डिश है ना,
वी नीड अ बंसन बर्नर, थोड़ा जिहा आपां नूं कॉटन भी चाहिदा आ, बस दैट्स इट। ओके चलो तो प्रोसीजर की है, प्रोसीजर ना लिखण तो पहला मैं तुहानूं समझा देनी हाँ, फिर तुहानूं ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो आ लगा लिया आप अपना बर्नर, ठीक है, दिस इज द बर्नर। हुण इहदे उपर रख दो चाइना डिश, रख दित्ती। हुण आपां की करना है, जिहड़ी अपनी फनल है ना बच्चे, उन्होंने इस तरह मुद्दी करके उल्टी करके ये ऊपर रख देना, इन्वर्ट करना, ठीक है, ये ऊपर रख देना। हुण जी फनल आ ये माउस के ना थोड़ा जिहा इदा करके कॉटन पा देना इत्थे, मतलब इन्हों आप प्लग कर देना चंगी तरह के नाल। वो करने तो पहले इत्थे अपना अमोनीयम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर भी पाना है चाइना डिश के विच, ये ना होवे मिक्सचर पाया ना होवे। तो इत्थे जिहड़ा अपना सॉल्ट और अमोनीयम क्लोराइड का मिक्सचर आ वो पा दो, फिर ये उपर एक फनल नूं इन्वर्ट करके रख दो, और जिहड़ा फनल का माउथ आ उन्होंने प्लग कर दो विद द हेल्प ऑफ कॉटन, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट, अरेंज द apparatus as shown, ठीक, जिदा दिखाया गया उदा apparatus सेट करो। ठीक, जदों सेट हो गया उस तो बाद की करना है, नाउ स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर, इनू हीट करना शुरू करो, हीटिंग द मिक्सचर, है ना। नीचे एक बंसन बर्नर लगा के इनू हीट करना शुरू कर दो। ओके चलो, जो हीट करना शुरू हो गया तो ऑब्जर्वेशंस की होगी, आप की देखांगे, आपां नूं की ऑब्जर्व होगा, तो वी विल ऑब्जर्व, आपां नूं दिखूगा कि वाइट कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं इहदे विचों, है ना, छोटे छोटे जिद्दां स्मोक जिहा आपां नूं दिखूगा। ठीक है, वी विल सी फ्यूम्स ऑफ वाइट फ्यूम्स, इत्थे वाइट लिखो नाल, वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनीयम क्लोराइड, अमोनीयम क्लोराइड का फॉर्मूला बेटे, ठीक है, अमोनीयम क्लोराइड। हुण एक चीज़ इत्थे यह है कि आपां इत्थे कॉटन क्यों पाया, देखो बेटे जिहड़ा सॉल्ट आ वो तो हुण सबलाइम होगा नहीं, है ना, लेकिन अमोनीयम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करता है। सो व्हाट हैपन्स, अमोनीयम क्लोराइड जिहड़ा इहदे वेपर्स जिहड़े ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे, है ना, टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा तो ये वेपर्स ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। सो दे विल रीच अप टू दिस पॉइंट, इत्थे आना शुरू हो गए। हुण इस जगह के टेंपरेचर इस जगह नालों तो घट है ना, दिस इज एट लो टेंपरेचर, दिस इज एट हायर टेंपरेचर। तो जदों ही ये इत्थों ये वेपर्स इत्थे तक पहुँचोगे, इत्थे ठंडा टेंपरेचर घट टेंपरेचर होने का करके उन्होंने जदों ये वॉल्स दे नाल वजना ना इत्थे आके, उन्होंने की होना फिर तो गैशियस फॉर्म तो सॉलिड फॉर्म दे विच चेंज हो जाना, है ना। जदों ये काम होगा उन्होंने आपां की कहते हैं डेपोजिशन। तो जिहड़ा सॉलिड अमोनीयम क्लोराइड पहले गैशियस फॉर्म च कन्वर्ट होया सी, वही गैशियस अमोनीयम क्लोराइड वापस सॉलिड दे विच कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आप कॉटन क्यों लाया, ताकि अमोनीयम क्लोराइड बाहर ना निकल सके। ओके, तो बस आही काम से, है ना, कि हुण जिहड़ा अमोनीयम क्लोराइड इत्थे कलैक्ट हो गया आ, नीचे सॉल्ट बच गया, सॉल्ट नूं आपां चाइना डिश चों कलैक्ट कर सकते हैं, अमोनीयम क्लोराइड नूं आपां इत्थों फनल विचों कलैक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट अबाउट दिस एक्टिविटी एंड दैट्स इट अबाउट द मैथड। सौखा सी ना, ठीक है। सो हुण आपां करदे हां नैक्सट मैथड, उहदे लई मैं कर दिंदी फटाफट इहनूं इरेज, है ना। चलो नैक्सट मैथड आप करना है मैथड नंबर 5, दैट इज क्रोमैटोग्राफी। पहला तो हैडिंग पा लो, फिर ये बारे पूछांगे दसांगे, है ना, भी की होंदा है क्रोमैटोग्राफी। ठीक है बच्चे, इतने मैं तुहानूं एक चीज़ दसदी हां, क्रोम वर्ड जिहड़ा ना, क्रोम दैट इज यूज्ड फॉर कलर, ग्रीक वर्ड आ, उसका मतलब होंदा कलर। ठीक है, तो ये मैथड आप कितने यूज़ करते हैं, वेयर डू वी यूज़ दिस मैथड, जदों अपने कोल किसी सबसटांस दे विच कलर्ड कंपोनेंट्स होंदे हैं ना, अगर आप उन्हां कलर्ड कंपोनेंट्स नूं अलग अलग करना चाहते हैं, उत्थे क्रोमैटोग्राफी वरतदे हैं। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी ना बच्चे 2-3 तरह की होंदी है। ठीक है, जिहड़ी तुहाडे सिलेबस तुहानूं पढ़ाउणी है दैट इज पेपर क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, पेपर क्रोमैटोग्राफी के की होंदा, आप एक फिल्टर पेपर लेंदे आ, ठीक है, उन्होंने यूज़ करते हैं क्योंकि पेपर यूज़ हो रहा है, इसलिए उन्होंने पेपर क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। जिहड़ियां
होर टाइप्स आ है ना वो हायर स्टडीज़ के विच आ इस लैवल ते तुसीं सिर्फ पेपर क्रोमैटोग्राफी के बारे पढ़ना आ। स्कूल में भी जो तुहानूं पढ़ाई जाऊगी दैट विल बी जस्ट द पेपर क्रोमैटोग्राफी। ओके, परफॉर्म करवाई जाऊगी, पढ़ाई जाऊगी नहीं, परफॉर्म करवाई जाऊगी। ठीक है। सो हुण इहदा प्रिंसीपल की है? प्रिंसीपल हैगा इहदा सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये प्रिंसीपल समझने लई ना आपां की करदे पहला समझते हैं कि आपां इस मैथड च करदे की हाँ, दैन यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये प्रिंसीपल है कि फॉर द टाइमिंग बस इन्ना याद रखो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, इन्नी चीज़ याद रखो। चलो इनू मैं इरेज कर रही हाँ, है ना। तो वी विल फर्स्ट डू दी एक्टिविटी, बाकी गल्लां बाद में। एक्टिविटी दा हेडिंग पाओ to separate the dyes present in black ink। black ink ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर दैट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, what do we need? materials required। पहला तो आपको फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप चाहिए। फिल्टर पेपर देखा होना कैमिस्ट्री की लैबोरेटरी के विच है ना, फिल्टर पेपर स्ट्रिप यही चाहिए है। ठीक है, दूसरा आपको चाहिए है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर सॉल्युबल इंक। ड्रॉप्स ऑफ, मार्कर नहीं चल रहा है ना सही, ऑफ वाटर सॉल्युबल इंक। ठीक है, कुछ यही अपन चाहिए। उस तो बाद लार्ज साइज एक अपन गैस जार चाहिए, गैस जार विद इंक, सॉरी विद लिड, ढक्कन वाला जार चाहिए। ठीक है, यह तो एक अपन थोड़ी जी सैलो टेप चाहिए, एक अपन थ्रेड चाहिए। ठीक है, डन। ये है मटीरियल्स है ना। हुण आपां की करते हैं, पहला समझ लेंगे हैं डायग्राम के थ्रू कि आपां करना की है ना। चलो, तो आपां ले लेना जार। ठीक है, इनू आपां इत्थे तक पानी नाल भर देना। ठीक है, हुण जिहड़ा फिल्टर पेपर लिया ना उन्नू इहदे विच सस्पेंड करना इस तरीके नाल। सो एक मिनट, फिल्टर पेपर ने पाउण तो पहले एक होर काम करना। फिल्टर पेपर इदां ले लेना, वो इत्थे एक छेक करना, धागा लगा के ना ऊपर डोरी बन देनी, मतलब हैंडल जिहा बना लेना। ठीक है, हुण इत्थे की करना, आपां एक लाइन लगानी है इस तरह के नाल। इत्थे ना 3-4 ड्रॉप्स पा देनियां वा इंक दियां, वाटर सॉल्यूबल इंक दियां, मतलब जिहड़ी पानी च मिक्स हो सके, ऑयल बेस्ड नहीं होनी चाहिए, जिहड़ी पानी च सॉल्यूबल आ, डिजोल्व हो सकती, वो वाली इंक लैनी। ਉਹਦੇ कुछ ड्रॉप्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। हो गया, ਹੁਣ इंक ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਸੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ इंक ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਲੈਟ ਇਟ ਡਰਾਈ ਫॉर ਅ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਜਸਟ ਇੱਥੇ, मतलब लिटिल अबव इत्थे, पानी के लैवल तो माड़ा जिहा उपर हो गया। जिहड़ा धागा है ना वो लूप नूं थोड़ा जिहा लंबा बनाइओ। ठीक है, तो उन्होंने इधर साइड ते लिया के सैलो टेप नाल फिक्स कर दिओ इत्थे। हुण जिहड़ा ढक्कन ना इहनूं कर दो बंद। हुण देखो बच्चे, पेपर दे विच ना पेपर की शो करदा कैपिलरी एक्शन शो करदा। कैपिलरीज की हुंदियां आ 1 मिलीमीटर डायामीटर वाली ना, 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर भी नहीं, 1 मिलीमीटर डायामीटर वाली छोटी छोटी ट्यूब्स होंगे, उन्होंने आप कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरीज च की होंदा है कि जो वाटर है ना वो उपर नूं राइज करता है। ठीक है, उन्होंने आप कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, सेम चीज़ जी है ना, सेम फिनोमिनन आपको पेपर च भी देखने को मिलता है। सो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन पानी जो ये उपर उठना शुरू हो जाएगा, है ना। पेपर पहला जो इस तक गिला सीगा वो पानी तां चढ़ना शुरू हो जाना, है ना। हुण हौली हौली पानी जो इस ड्रॉप तक भी पहुँचूगा। हम ड्रॉप के जो डाइज आ है ना उन्होंने भी की होना पानी च डिजोल्व होना शुरू हो जाना। हम उन्होंने कोई ना कोई इंक जी होगी पानी से ज़्यादा घुलन वाली होगी, ज़्यादा सॉल्युबल होगी, किसी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आ, किसी की सॉल्युबिलिटी घट आ। हम पानी ने तो बच्चे ऊपर को जाना ही है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, है ना।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ है ना, ज़्यादा मिक्स हो जूगी। जिहदी सॉल्युबिलिटी घट आ है ना वो थोड़ा पीछे रह जाएगी। तो होगा कि पानी के बच्चे हौली हौली ना ऊपर राइज करना शुरू कर दें इस तरह के नाल। तो यू विल सी इत्थे तुहानूं एक कंपोनेंट दिखूगा, एक कंपोनेंट तुहानूं इत्थे दिखूगा, एक कंपोनेंट तुहानूं इत्थे दिखूगा है ना। सो यू विल सी इस तरह के नाल कि एक कंपोनेंट ज़्यादा छेती ऊपर चले गया, दूसरा घट ऊपर गया, तीसरा जिहड़ा आ थोड़ा नीचे रह गया। इदां क्यों होया? क्योंकि आ वाला जो उपर है ना कंपोनेंट ये पानी के ज़्यादा डिजोल्व हो रहा सीगा है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। हुण जे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है उसका मतलब की आ कि देखो वो फ्रेंडशिप होगी ना पानी के नाल, बहुत खुश आ, तो जिथे जिथे पानी जाएगा उत्थे उहदे नाल फटाफट जाता जाएगा। ठीक है, हुण ये दोस्ती घट हुई, ये सब तो घट हुई, तो पीछे रह गया, पानी ऊपर चल गया, ये पीछे रह गया। सो दिस इज़ वॉट वी डू इन क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी का प्रोसैस भी यही आ। ठीक है, तो ये आपां की कर सकते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स नूं वखरा करने वास्ते क्रोमैटोग्राफी मैथड जिहड़ा आपां यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लीयर है? दिस इज़ ऑल अबाउट द मैथड। प्रोसीजर लिखण दी लोड़ नहीं, इहनूं समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मैथड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मैथड, दैट इज डिस्टिलेशन मैथड। ठीक है, पहला आई रेज कर दिया। चलो तो हेडिंग पा लो, दिस इज मेथड नंबर 6, मेथड नंबर 6 डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड ना बहुत आसान जहा मैथड है, यदि एक्टिविटी कर लो, यू विल ईजिली गेट टू नो कि आप ये करते हैं। ठीक है, ये भी वही चीज़ आ कि अगर कोई सबस्टांस जो वोलाटाइल आ है ना, दूसरा नॉन वोलाटाइल आ, तो उन्होंने सैपरेट कर सकते। ओके, किस तरह का अरेंजमेंट आप करांगे, एक्टिविटी ही प्रोसीजर वगैरह लिखण की भी तुहानूं कोई लोड़ नहीं, कुछ लिखण की लोड़ नहीं, जस्ट एक्टिविटी समझो है की आ। ठीक है, इधर तुसी एक इस तरह का कंटेनर लिया, तुसी ना माड़ा जी गूगल पे सर्च करके इहदा अपरेटिस देख लियो, मैं तुहानूं एक जनरल जिहा आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, जो एक्चुअल दे विच हुंदा है ना, तो ये उपर ना तुसी इहदा लिड लगाया, लिड कहते ढक्कन नूं। लिड इस तरह का लेना है जिहदे नाल एक इस तरह का पाइप लगा हो। ठीक है, और ये वाला जिहड़ा पाइप आ इट शुड गो इनटू सम अदर वैसल, किसी होर भांडे में जाना चाहिए। इनू तुसी हीट करना शुरू कर दो। पहले इहदे विच पानी पाउणा है ना, जिद्दां अगर पानी विचों सारा कुछ ही अलग करना, कोई मिनरल्स पानी च ना रह जान, कुछ भी ना रह जाए है ना, तो ये मैथड यूज करना जिहड़ा आपां लैबोरेटरीज दे विच यूज़ करते हैं पानी रिएक्शनस कैरी आउट करने लिए, वो डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ करना होंदा है। ठीक है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर दे विच कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होंदा, सिंपली H2O, नथिंग एल्स। और बिलीव मी कि हाँ ये गल सच्ची हाँ कि डिस्टिल्ड वाटर इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर अस। ओके, क्योंकि पानी जिहड़े मिनरल्स होंगे अपने लिए इंपॉर्टेंट है, दे आर इंपॉर्टेंट टू अस, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स नथिंग एट ऑल। ठीक है, तो इन्हू बनाते किस तरह आ, ओहदा इंपॉर्टेंस सिर्फ लैबोरेटरीज दे विच। ओके, नथिंग नोवेयर एल्स। हुण जदों मैंने हीट करना स्टार्ट किया तो वाटर विल स्टार्ट गेटिंग इवैपोरेटेड, और जिहड़े वेपर्स आ वो इत्थों हुंदे 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 इधर जाओगे। इनू आपां की कर सकते हैं, इनू आपां एक आइस बाथ दे विच रख सकते हैं। आइस बाथ मतलब कंडेंसर। इनू आपां तुहाडे जिहड़ा डायग्राम तुसीं देखोगे ना उहदे विच इनू कंडेंसर लिखिया हुंदा है ना, तो इन्हों आप कंडेंसर कहते। हुण इत्थों जिहड़े वेपर्स आए उन्होंने टैंपरेचर हाई सीगा, जो इस वैसल दे विच पहुंचे इनू भी तो बंद कर लेना है ना, जो इस वैसल दे विच पहुंचे तो इत्थे क्या टैंपरेचर घटिया, तो वेपर वापस काहदे च कन्वर्ट होना शुरू हो जाऊगे, लिक्विड वाटर दे विच। इस प्रोसैस नूं आपां की कहंदे आ डिस्टिलेशन। जिहड़ा आपां नूं पानी मिलिया वो की मिलिया, डिस्टिल्ड वाटर। क्लीयर? ठीक है, एज ईजी एज दैट। वाइन बनाने लिए भी सेम मैथड यूज होता है, डिस्टिल्ड वाटर बनाने लिए भी सेम मैथड यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टिलेशन मैथड। डन 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 हो गया। ठीक है, हो चलो नेक्स्ट आप करना क्रिस्टलाइजेशन मैथड। हेडिंग रह गई रेस करने वाला। क्रिस्टलाइजेशन मैथड रजे की है, इफ यू रिमेंबर जो मैं तुहानूं इवैपोरेशन करवाया सी ना, उदों मैं तुहानूं क्रिस्टलाइजेशन के बारे थोड़ा जिहा हिंट दिता सी। मैं तुहानूं कहा सी क्रिस्टलाइजेशन मैथड आपां जिहड़ा करना है ना,
जे तुहानूं याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद तो चेते कर लो चंगी तरह, है ना। तो मैथड नंबर 7 इज क्रिस्टलाइजेशन मैथड। क्रिस्टलाइजेशन मैथड, ठीक। हुण क्रिस्टलाइजेशन मैथड की आ, देखो बेटे क्रिस्टलाइजेशन दे विच की हुंदा, आपां क्रिस्टल्स बनाउंदे आ। ये यूज कित्थे हुंदा आ, इंप्योर सबसटेंसेस तो प्योर सबसटेंस जिहड़े आ ऑबटेन करन, ठीक आ। इंप्योरिटीज़ अलग हो जांदियां और आपां नूं प्योर क्रिस्टल्स मिल जांदे आ, ठीक आ। इहदे लई आपां एक्टिविटी चंगी तरह समझदे आ, ठीक आ। तो एक्टिविटी की आ, व्हाट्स द एक्टिविटी हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर च आ जाती कई बार ये बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ठीक है, इस करके इन्हें ध्यान नाल पढ़ना। टू ऑब्टेन crystals of copper sulfate from its impure sample, ठीक है। इंप्योर सैंपल तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स चाहिए। तो मटीरियल्स अपन केड़े-केड़े चाहिए हैं, विच मटीरियल्स डू वी नीड, ठीक है। पहला तो अपन चाहिए एक इंप्योर सैंपल चाहिए, इंप्योर सैंपल, दूसरा ऑफ कादा कॉपर सल्फेट दा, आ फार्मूला बच्चे कॉपर सल्फेट दा, एक अपन जो इंप्योर सैंपल इहदा दे देंगे वो चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा अपन चाहिए होगा एक चाइना डिश, ठीक है। एक अपन चाहिए ग्लास रॉड, HCl चाहिए आ, ठीक है। HCl तो बाद अपन थोड़ा वाटर चाहिए आ, एक बीकर चाहिए आ, एक बंसन बर्नर चाहिए आ, एक अपन ट्राइपॉड चाहिए आ, ठीक है। आ वाला सामान अपन चाहिए। फिल्टर पेपर, ठीक है, दिस इज इट वी नीड। तो करना किया, लेट्स अंडरस्टैंड। पहला की करना, चाइना डिश लैनी या बीकर लोए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇੰਪਿਓਰ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ HCl ਐਡ ਕਰੋ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਲਾਸ ਰੌਡ ਨਾਲ ਸਟਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੋਲੀ ਦਾ ਉਹਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ HCl ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक आप लेना फिल्टर पेपर, है ना, फिल्टर पेपर ही लवांगे, एक लैनी आप इस तरह के नाल कोन, ठीक है। ये फिल्टर पेपर की लाइनिंग ला देनी, ठीक है। फिल्टर पेपर का कोन जहा बना के ना ये इंसर्ट कर देना, नीचे रख देनी चाइना डिश, ठीक। इस तरह हुण आ जिहड़ा जो भी अपने कोल मिक्सचर है ना, इनू पा देना ये, ठीक है। हुण नीचे जिहड़ियां इंप्योरिटीज़ हो गई सॉलिड वड्डे साइज़ दियां, वो इत्थे उपर रह जूगियां, इत्थे इहदे नाल लगियां, है ना। जिहड़ा आ लिक्विड पार्ट होगा वो इत्थे नीचे आ जाए, फिल्ट्रेट जिन्हों आपां कहंदे हां, है ना। इत्थे जो भी अपने कोल आएगा इन्हों आपां की कहंदे हां, फिल्ट्रेट, ठीक है। हुण की करना, इस फिल्ट्रेट नूं ट्राइपॉड स्टैंड ला लो आपदा, ठीक है। इहदे ते रख दो चाइना डिश, फिट आ जाती होंगी चंगी तरह दे नाल, एडी कोई गल नहीं है, ठीक है। स्टार्ट हीटिंग इट, ठीक है। कदों तक हीट करना है ना, अंटिल व्हेन डू यू नीड टू हीट इट, तो स्टार्ट हीटिंग इट, है ना। आफ्टर सम टाइम की होगा कि क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आऊगा। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, देखो बच्चे सपोज कर लो ग्लास रॉड एंड यू स्टार्ट स्टरिंग द मिक्सचर, है ना। जो तुसीं इहनूं हीट करना ना, तुसीं इहनूं नाल दी नाल हिलाई जाना। आफ्टर अ मिनट और सो उन्होंने कढ़ के ना तो फूक मारो। तो अगर तुहानूं वाइट कलर का एक सबसटांस लगा होया ग्लास रॉड ते नज़र आता है ना, तो ठीक आ, माड़ा जिहा तुसीं उहनूं इदां उंगल दे नाल लगा के भी देख सकते हो। अगर तुहानूं अपनी उंगल ते वाइट जिहा कुछ दिखदा आ, दैन स्टॉप हीटिंग, होर हीट करने की लोड़ नहीं। अगर नहीं दिखता थोड़ा होर हीट करो, थोड़ा होर हिलाओ, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर इस तरीके नाल चेक करो, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट चेक करो। जदों ही तुहाडा क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया, हीट करना बंद कर दिओ, ठीक है। उस तो बाद जी चाइना डिश है, इन्हूं टोंग्स दे नाल चक्को, बीकर लो, इन्हूं पानी नाल भरो ऊपर तक,
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਓਬਟੇਨ ਪਿਓਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ, ਠੀਕ ਆ। ਪਿਓਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਿਉਂ ਬੈਟਰ ਆ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓਰਿਟੀ ਗਰੰਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। The last thing that we are going to do is the physical and chemical changes, ठीक है। तो की होंगे physical और chemical changes। देखो बच्चे जिन्ने भी तरह के अपने आस-पास changes होंगे ना वो दो तरह के होंगे। एक तो उन्होंने आप क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो physical, दूसरे chemical। हुण physical change किहड़े होंगे आ? फिजिकल चेंजेस दे विच बच्चे जिहड़े मॉलिक्यूल्स होंगे ना सिर्फ उन्हां दी जगह जिहड़ी आ ओह चेंज होंदी आ, अदरवाइज होर कोई चेंज नहीं होंदा। मतलब जे H2O मॉलिक्यूल आ वो H2O ही रहना, ठीक है। एज सच होर कोई चेंज नहीं आना, है ना। लेकिन जो कैमिकल चेंज आ है ना वो H2O ने कुछ होर दा होर बन जाना, मतलब कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ही चेंज हो जाती, ठीक है। सबसटांस जिद्दां ओहदी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती, ठीक आ। जो फिजिकल चेंजेस आ है ना वो रिवर्सिबल हैगे आ, एक्सैप्शनस आर देयर। फॉर एग्जाम्पल जिदा पेपर आ, अगर पेपर नूं फाड़ दो है ना, हैगा फिजिकल चेंज आ लेकिन वो रिवर्सिबल तो नहीं ना हैगा, ठीक है। कैमिकल चेंजेस आर कंप्लीटली इरिवर्सिबल। कैमिकल चेंजेस अगर एक बार हो गए, जिदा पेपर आ उन्होंने बर्न कर दिता है ना, तो पहला पेपर सीगा तो नैक्सट एशेज बन गए है ना, तो उन्होंने आप वापस पेपर थोड़ी बना सकते हैं, तो दैट इज़ कंप्लीटली इरिवर्सिबल, ठीक। नैक्सट के फिजिकल चेंज कोई भी नवा सबसटांस नहीं बनता। जिदा पेपर में फाड़ दिता कि नवा सबसटांस बनया नहीं ना, तो नवा सबसटांस नहीं बनता। लेकिन जेडे कैमिकल चेंजेस होंगे आ उहदे विच नवी नवी चीज़ां बन जाती। जिदा पेपर में जलाया then what do we get ashes which is a new substance, ठीक। फिजिकल चेंजेस टेंपरेरी भी हो सकते, परमानेंट भी हो सकते, लेकिन जेडे कैमिकल चेंजेस है परमानेंट ही होंगे, ठीक है। ऐश बन गई वो ऐश ही रहेगी, वो तो कुछ होर बन जाएगा लेकिन वापस पेपर नहीं बनेगा। फिजिकल चेंज दे विच कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होंदा, है ना। कन्वर्ट हो सकती है एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी कोई, ठीक है। लेकिन जेडे कैमिकल चेंजेस आ उहदे विच एनर्जी रिक्वायर्ड होंदी है, वी रिक्वायर सम एनर्जी, ठीक है। चाहे आपां नूं उहनूं देनी पवे, चाहे आपां नूं कुछ एनर्जी तो मिले, वी नीड सम एनर्जी कैमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंजेस जेडे होंदे आ वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नूं अफेक्ट करते हैं, है ना, शेप नूं, साइज़ नूं। लेकिन जेडे कैमिकल चेंजेस आ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नूं भी अफेक्ट करते हैं और कैमिकल प्रॉपर्टीज़ नूं भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो शेप साइज़ वगैरह नूं भी चेंज कर देंगे और वो केमिकल कंपोजिशन भी चेंज कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। अपना चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। चलो तो तुहानूं अगर चैप्टर कुछ भी समझ नहीं आया हैगा तो तुसीं मैनूं दस सकते हैं, है ना। आई ट्राई टू क्लियर योर क्वेरीज, है ना। तो दो चैप्टर अपने पूरे हो गया। आई सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। लेट मी डिसाइड कि नेक्स्ट चैप्टर थर्ड करवाना है कि करवाना है ना। तो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। हाँ, बिफोर आई गो, subscribe to my channel by clicking that red button and also press that bell icon ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करा तानू नोटिफिकेशंस मिलते रहें, है ना। Keep learning. Have a good day.